Hi, my dear students. I am Dr. Veena Dhari, Associate Professor from Ravindranath Tagore University, Bhopal. So today we are going to discuss the program partitioning scheduling to implement the parallelism and static interconnection networks, different static interconnection networks. So these topics we are going to discuss in this lecture. These are the lecture objectives. After this lecture, students able to know the different program sizes to implement the parallelism, how to pack and schedule a program to get the level to achieve the parallelism, and able to define different static interconnection networks. These are the lecture objectives. See, in previous lecture I explained already about the instruction level parallelism. So one of the parallelism, different types of parallelisms are available. One of the parallelism is one type of parallelism is instruction level parallelism. So to achieve the instruction level parallelism, we need to avoid the data dependency, resource dependency, and control dependency. So those dependencies can avoid using the Bernstein conditions we already discussed. Okay. So here I'm explaining the program partitioning. What is the need of program partitioning? Okay. If there is a 2000, 3000 instructions code available, is there available? So we need to implement it. Okay. We need to implement some parallelism in that code manually or using the compilers. So we need to partition the program. That's why we need to partition the program. So here, see, the transformation of sequentially coded program into a parallel executable form can be done manually by the programmer using explicit parallelism or by a compiler detecting the implicit parallelism automatically. If it is by programmer, we need to use the explicit parallelism. If it is detected automatically by the compiler, then it is implicit parallelism automatically. Okay. Program partitioning determines whether the given program can be partitioned or split into pieces that can be executed in parallel or follow a certain pre-specified order of execution. Okay. If you want to implement the parallelism in that code, so we need to decide how it should be partitioned, या split into the pieces, या it needs to मतलब pieces में आप divide करके फिर execute करें parallel को achieve करने के लिए, otherwise कुछ order को follow करना है, ये अपन program partitioning के through अपन जानते हैं. Okay. So program partitioning and scheduling, the size of the parts or pieces of a program that can be considered for parallel execution can be vary. Okay. हमेशा इतना फिक्स्ड साइज ही होगा पैरेललिज्म एग्जीक्यूट, मतलब आप इंप्लीमेंट करने के लिए कोड को 20 के बाद स्प्लिट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता. इट विल बी execution can be vary. It may be vary to the program to program. The sizes are roughly classified using the term granular size or simply granularity. Okay. So it is like a grain size, like a program को अपन एक size पे अपन बोलेंगे तो granular size या or simply granularity कहते हैं. The simplest measure, for example, is the number of instructions in a program part. Okay. एक 3 sizes are available. Okay, granular मतलब grain sizes कहते हैं उसको. इसी में according to the size instructions को अपन instruction count को बता देंगे. Okay, देखिए यहाँ पर grain sizes are usually described as fine, medium or coarse depending on the level of parallelism involved. Okay, fine, 3 sizes are available: fine, medium or coarse, है ना. नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को देख के इस लेवल को डिसाइड किया गया था. इसको कहते हैं ग्रेन साइज, फाइन, मीडियम और कोर्स, है ना. पैरेललिज्म कितना इंप्लीमेंट करना है इसके ऊपर डिपेंड होता है, बिकॉज फाइन इज द छोटा है, मीडियम इज इन बिटवीन, कोर्स इज द मतलब बिग प्रोग्राम्स है. इसको कहते हैं ग्रेन, फाइन, मीडियम और कोर्स साइजेस. If you are implementing the parallelism, we need to reduce the latency. Okay. So latency means आप parallelism improve मतलब implement किया, latency बढ़ गया तो इसका कोई मतलब नहीं. Latency is the time required for communication between different subsystems. Okay.
देखिए एक मेमोरी टू प्रोसेसर या प्रोसेसर टू प्रोसेसर या मेमोरी टू मेमोरी कम्युनिकेशन के बीच में डिले हो गया, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी, है ना। सो यहाँ पर यही बता रहे, memory latency for example is the time required by a processor to access the memory, है ना, that is called memory latency, okay, it is a delay. And synchronization latency, है ना, टू प्रोसेसर्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस के लिए मतलब डिले हो रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन लेटेंसी. एंड communication latency is the inter processor communication, है ना. synchronization different है, communication different है. ओके, इफ सो ये लेटेंसी को देखकर आपको पैरेललिज्म को रिड्यूस करके पैरेललिज्म को इंप्लीमेंट करने का जरूरत है. सो दीज आर द लेवल्स ऑफ, आई ऑलरेडी टोल्ड, कोर्स ग्राइंड, मीडियम ग्राइंड एंड फाइन ग्रेन, है ना, फाइन ग्रेन. सो देखिएगा, fine grain is the least, that is instructions or statement, non-recursive loops or unfolded iterations, है ना. small मतलब 200 statements up to so है, then yeah 20 statement, from 20 to 200 statements, then it is called fine grain. And medium grain up to 2000 instructions are there, then it is called medium grain, है ना. इसमें प्रोसीजर, सब रूटीन, टास्क, को रूटीन्स मतलब ये, एंड जॉब सब ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्राम्स ये सब होगा, दिस इज कॉल्ड कोर्स ग्रेन. 2000 इंस्ट्रक्शंस के ऊपर है. सो यहाँ पर ज्यादा मतलब आपको कोर्स ग्रेन, इसको कहते हैं कोर्स ग्रेन, है ना. सो यहाँ पर ऊपर से नीचे तक है ना, हाई डिग्री मतलब हायर डिग्री ऑफ पैरेललिज्म. यहाँ छोटा इंस्ट्रक्शंस बहुत लेस है, मतलब इफ यू आर हैविंग लेस इंस्ट्रक्शंस सो वी कैन मतलब वेरी इजीली इम्प्लीमेंट द पैरेललिज्म, है ना. सो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो पैरेललिज्म इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है. सो हायर डिग्री ऑफ पैरेललिज्म is will be achieved, instructions or statements are very less, है ना. फाइन ग्रेन पे आपको हायर डिग्री. बट यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग कम्युनिकेशन डिमांड एंड शेड्यूलिंग ओवरहेड, है ना. यहाँ पर इंस्ट्रक्शन अपन मैन्युअली भी कर सकते हैं इसको, डिमांडिंग शेड्यूलिंग मतलब आप इसको पार्टीशनिंग शेड्यूलिंग करने के लिए यहाँ पर देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, है ना. यहाँ पर कर सकते हैं अपन, वी कैन अचीव हायर डिग्री पैरेललिज्म बाय इंप्लीमेंटिंग दिस, बट यहाँ पर डिफिकल्ट. सो इसीलिए एरो मार्क नीचे है. सो लेवल्स ऑफ पैरेललिज्म इंप्लीमेंट करने के लिए फाइन ग्रेन, मीडियम ग्रेन एंड कोर्स ग्रेन, दीज आर द 3 ग्रेन्स आर अवेलेबल. ओके, so yeah, the total summary of these: fine grain exploited at instructions or loops level assisted by the compiler, है ना. मीडियम ग्रेन रिक्वायर्स प्रोग्रामर एंड कंपाइलर सपोर्ट, है ना. यहाँ पर तो कंपाइलर के साथ भी अपन ऑलरेडी अचीव कर सकते हैं. यहाँ पर it requires the programmer and compiler support also. Coarse grain relies heavily on effective OS support, है ना. So then only shared variable communication used at fine and medium grain levels, है ना. shared variable, shared memory मतलब उसका variable communication use कर सकते. Message passing can be used for medium and coarse grain communication, but fine grain really need better technique because of heavier communication requirements, है ना. यहाँ पर मैंने already previous यहाँ पर communication it will be increasing in that instruction, यहाँ पर है तो आपको मतलब communication means it is a level of dependency, ये सब यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा. सो यहाँ पर ज्यादा टेक्निक की जरूरत पड़ेगा बिकॉज ऑफ हेवियर कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स, है ना. सो ओएस इसमें ये कोर्स ग्रेन है ना, हेवीली मतलब ओएस सपोर्ट की जरूरत है इसमें. पैरेललिज्म अपन को achieve if you want to achieve at coarse grain level. Okay, shared variable communication at fine and medium, and message passing can be used for medium and coarse, है ना. This is the actual summary of 3 courses grain sizes. So here we already told grain sizes are different available. So एक program अपने पास है. So grain packing and scheduling अपन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को. How to packing and scheduling of one program, है ना. 17 statements are there. Okay, these are the variable, different variables are available. A1, B2, C3, 4, 5, 6, है ना. Up to 17 statements are available. Suppose this is the condition, how can we fine grain में आपको कैसे packing होगा या coarse grain में कैसे packing होगा. This is the actual diagram of this fine grain and coarse grain, है ना. Don't worry, I will explain it. Okay, so see,
here one these are all the up to 6th instruction है ना, up to 6th instruction तक these are the memory fetching instructions. okay, memory fetching instructions है ना. so यहाँ पर memory fetching instructions means मेमोरी से डेटा को फेच करने के लिए है ना, मेमोरी से मतलब डेटा को फेच करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन है. सो इंस्ट्रक्शन इसीलिए A1 B2 दीज आर द. इसके बाद ये वाला इंस्ट्रक्शंस क्या है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन ही है, सभी पर मल्टीप्लिकेशन से. ओके, सो यहाँ पर देखिएगा एक एक मेमोरी फेचिंग मतलब इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर अपन को लेने के लिए यहाँ पर सो एक डेटा मतलब ये मेमोरी से फेच करने के लिए 6 साइकिल्स इट विल बी नीडेड है ना, 6 साइकिल्स इट विल बी नीडेड. एंड बाकी ये मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने के लिए 2 साइकिल्स आर नीडेड है ना, 2 साइकिल्स आर नीडेड. सो इसीलिए देखिएगा फर्स्ट वन दिस इज द आपका नोड साइज है एंड ग्रेन का साइज है. ग्रेन का मतलब साइज क्या है, एक इंस्ट्रक्शन एंड फर्स्ट इंस्ट्रक्शन उसका मतलब कौन सा नोड है एंड कौन सा ये है. देखिएगा फाइन ग्राइंड पे मैंने आप डिवाइड किया तो कैसे होगा. सो देखिए ये 1 है ना, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इसका है 1 मतलब 1 यहाँ पर. सो 1 1 2 1 3 1 4 1 and 5 1 and 6 1 1 1 1 instruction is there, 1 1 1 instructions है ना. ओके, सो यहाँ पर क्या है, ये है इसको मेमोरी से फेच करने के लिए एक एक को 6 साइकिल्स आर वी नीड है ना, 6 साइकिल्स D6 E6 F6 एंड F6 है ना, 6 साइकिल्स आर जरूरत है एक एक को करने के लिए. एक इंस्ट्रक्शन है, एक नोड साइज है, दिस इज नोड है, वन फर्स्ट नोड सेकंड नोड थर्ड नोड फोर्थ नोड फिफ्थ नोड एंड सिक्स्थ नोड. ओके, एंड यहाँ पर देखिएगा A इंटू बी दैट इज इक्वल टू G है ना, G इज इक्वल टू 7th इंस्ट्रक्शन है A इंटू बी. इसको परफॉर्म करने के लिए 2 साइकिल्स आर जरूरत है. तो 7 को परफॉर्म मतलब ये है यहाँ पर 2 साइकिल्स की जरूरत है, यहाँ पर 8 का 2 साइकिल्स की जरूरत है. सो 9 का 2 साइकिल्स को जरूरत है, 10 का 2 साइकिल्स का जरूरत है. ओके, बाकी सब 2 साइकिल्स है यहाँ पर. सो यहाँ पर देखिएगा 2 यहाँ पर 1 1. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 ये सब एक है. सो 1 A 6 है, B 6 है, इसको परफॉर्म करने के लिए ये 2 साइकिल्स की जरूरत पड़ रहा है. ओके, C एंड यहाँ पर है D है ना, इसको परफॉर्म करने के लिए आपको 2 साइकिल्स की जरूरत पड़ रहे है ना, 8th वाला एंड 9th वाला आल्सो 2. 9th का क्या है D इंटू E है ना, D यहाँ से है एंड यहाँ से E है, D इंटू E है ना 9th. सो देखिए यहाँ पर D इंटू E है ना, 8th का क्या है C इंटू D है ना, 8th का क्या है C इंटू D. ओके, ये साइकिल्स है. सो इसको यहाँ पर क्या किया मतलब ये 11th का क्या है D इंटू F है, D इंटू F है. सो D को यहाँ से लिया एंड F को यहाँ से लिया. ओके, सो इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या किया था, यहाँ से मतलब 11th से फिर सपोज 12 13 14 है, 12 13 14 क्या है, 12 13 14 इट इज L इज इक्वल टू J इंटू के. J के ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल मतलब ये ऑलरेडी समेशन मतलब ये है. सो J इंटू के, इसलिए ये तीनों को L M N है ना, ये तीनों को एक पार्टीशन मतलब यहाँ पर 12 13 14 है ना. सो के यहाँ से आ गया, J यहाँ से आ गया, इट इज टोटल 4 साइकिल्स है ना, यहाँ से आ गया ये 4 आ गया क्योंकि यहाँ पर 4 साइकिल्स मतलब 3 साइकिल्स इसीलिए लिया. यहाँ से यहाँ एक ही साइकिल आ जाएगा, यहाँ से 2 साइकिल्स, यहाँ से एक साइकिल, यहाँ से 2 साइकिल्स, इसलिए टोटली 3 साइकिल्स यहाँ पर है. ओके, सो इसके बाद 15 16 17 है ना, 15 16 17. सो वो इज इक्वल टू N इंटू आई, वो इंटू H एंड P इंटू Q है ना, वो इज इक्वल टू N इंटू आई. N इज इक्वल टू क्या है 14 से है ना. सो 14 से N है, यहाँ से I है, ये 4 है. ओके, सो यहाँ से
यहाँ वो दैट इज इक्वल टू वो ऑलरेडी है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 4। सो फाइन ग्रेन पे क्या हो गया, आपको कितने टोटल पार्टीशंस हो गया, 17 पार्टीशंस हो गया है ना फाइन ग्रेन पे आपको, मतलब पैकिंग करने का। ये फाइन ग्रेन प्रोग्राम है ना, बिफोर ये पैकिंग का मतलब ऐसी। अब क्या किया, इसी को अपन कोर्स ग्रेन पे मतलब अपन को चेंज करना है, चेंज करना है तो ये सब मेमोरी फेचिंग इंस्ट्रक्शंस है ना, मेमोरी फेचिंग इंस्ट्रक्शंस है। इसको सबको एक जगह पर मतलब कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ पर है ना, देखिए ई इंटू एफ है ना। सो यहाँ पर सो फर्स्ट इट इज ये सबको ए कह दिया, ओके, एंड इट इज बी, इट इज सी, एंड इसको डी, एंड इसको ई कर दिया, ओके, इसको ई कर दिया, ओके। सो देखिएगा ए बी सी डी एंड ई, ओके। एंड ए का कितनी साइकिल्स है मैंने ऑलरेडी टोल्ड, मतलब 6 साइकिल्स ये सबका होता है, प्लस इसमें से एक मतलब 6 टोटल है ये, 1 2 3 4 5 6, एंड इसका है ओनली 2 साइकिल्स है ना, 2 साइकिल्स। सो टोटल कितनी साइकिल्स का जरूरत पड़ रही है यहाँ पर, दिस इज 8 साइकिल्स का जरूरत पड़ रहा है। सो 8 साइकिल्स का जरूरत पड़ रहा है, तो सो ये 8 है। सो ये 2 2 बी का क्या है 4, सी का 2 2 है, दिस इज 4, and D का 2 2 2 it is 6, and E का 2 2 2 it is 6, okay। and A से कहाँ तक गया, A से B आ रहे and C आ रहे है ना, A से B and C आ रहे, D B आ रहे क्या कहीं A से, हाँ यहाँ से ए से डी भी आ रहा है। सो कम्युनिकेशन देखिएगा, ए से बी, ए से सी एंड ए से डी, ओके। ए से बी कहाँ क्या क्या आ रहे, ये 6 एंड डी 6, सी 6 एंड डी 6 है ना, ये सब साइकिल्स को यहाँ पर ले लिया, ओके। एंड यहाँ से ये वाला मतलब सी कहाँ से, मतलब सी कहाँ जा रहे, डी एंड ये ई आ रहे एंड एफ आ रहे है ना, डी ई एफ 6 साइकिल्स लेकर। बी से जी एच कहाँ जा रहे, ई जा रहे, सो बी से ई जा रहे, जी एंड एच, ओके। So this is like scheduling. If you do like this graph, like a flow diagram type का already I explained. So ये पैकिंग यूज करके यू कैन इम्प्लीमेंट इजीली इम्प्लीमेंट। सो व्हाट इज द फ्लो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ फ्लो है, वहां पर पैरेललिज्म नहीं, दूसरी जगह पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो कोर्स गेन प्रोग्राम मतलब आफ्टर इसको पैकिंग करने के बाद, आफ्टर पैकिंग देन वी कैन इम्प्लीमेंट द पैरेललिज्म इन दिस, मतलब इन दिस मतलब आप एक फ्लो डायग्राम आने के बाद पैरेललिज्म इम्प्लीमेंट करने के लिए it will be very easy. This is a very small example to implement parallelism को बताने के लिए। So ये manually भी कर सकते हैं if it is a fine grain or medium up to medium grain तक। इसके बाद otherwise है ना, we need OS and compiler support की जरूरत से we can implement the parallelism, okay। So the idea of grain packing is to apply fine grain first in order to achieve a higher degree parallelism. Combines multiple, usually all fine grain operations with a single coarse grain node are assigned to the same processor for execution है ना। fine grain partition of a program often demands more inter-processor communication than that required in a coarse grain partition। I already told fine grain में communication ज़्यादा है, coarse grain में कम है। Internal delays among fine grain operations within the same coarse grain node are negligible because the communication delay is contributed mainly by interprocessor delays rather than by delays within the same processor, okay। The choice of optimal grain size is meant to achieve the shortest schedule for the nodes on a parallel computer system। So आप optimal grain size क्या होगा, तो आप that is the schedule the shortest for the nodes on a parallel है ना। ये फ्लो डायग्राम पे आपको शॉर्टेस्ट पाथ मतलब टू अचीव द शॉर्टेस्ट शेड्यूल होगा, मतलब या ज्यादा अचीव कर सकते हैं वैसा अपन पैक मतलब साइज हो सकता है। So that was the topic of fine grain scheduling and packing। So here system interconnect architectures है ना, there will be system मतलब between the
systems and processors, it wants to communicate some architecture, interconnection architectures are very necessary, है ना? So direct networks for static connections, indirect networks for dynamic connections, है ना? So why we are using networks, है ना? Internal connections in a centralized system among processors, memory modules and IO disks, है ना? And distributed networking for multi computer nodes, है ना? इस पे distributed network की जरूरत पड़ता है. Okay, so देखिए, so the goals of an interconnection networks are to provide a low latency, ज्यादा होना नहीं चाहिए, high data transfer rate, wide communication bandwidth, है ना? So ज्यादा bandwidth होना चाहिए, latency कम होना चाहिए, data transfer rate ज्यादा होना चाहिए. So then our goal, मतलब interconnection networks का goal we will achieve it. Okay. So network properties and routing के लिए क्या क्या है ना? Static networks क्या है? Point to point direct connections that will not change during the program execution is called static network, है ना? Program execute मतलब it will not change, है ना? It is static means it is permanently, है ना? So but dynamic क्या है? Switched channels dynamically configured to match user program communication demands, है ना? Include buses, crossbar switches, multi-stage networks, है ना? ये dynamically according to the user demand it will be changed, है ना? Both network types are also used for inter-processor data routing in SIMD computers, है ना? इस पे भी यूज कर सकते हैं, MIMD में भी यूज कर सकते हैं. So यहाँ पर स्टैटिक नेटवर्किंग मैं पहले अपना बात कर रही हूँ, डायनामिक का बाद में नेक्स्ट क्लास में बात करूंगी. सपोज स्टैटिक नेटवर्किंग का बात करना चाहते तो यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्राफ विद ए फाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स, है ना? यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आपको होना चाहिए. नंबर ऑफ नोड्स इज ए नेटवर्क साइज. ओके, नंबर ऑफ एडजेस, है ना? लिंक्स, है ना? लिंक्स एंड चैनल्स, है ना? इसको कहते हैं लिंक्स, नंबर ऑफ एडजेस को नंबर ऑफ लिंक्स कहते हैं. एंड नोड डिग्री, नोड डिग्री मींस एक नोड को कितने कनेक्शंस है ना? कितने एडजेस आर कनेक्टेड, दैट इज कॉल्ड नोड डिग्री. सो कभी कभी ऐसा होता है इन डिग्री आउट डिग्री भी, मतलब अपन कह सकते हैं. इनर वाला मतलब नोड के लिए कितना डिग्री है, आउटर नोड के लिए क्या डिग्री है. diameter, है ना? next terminology is diameter. Diameter is the maximum shortest path between any two nodes. मतलब between any two nodes means फर्स्ट नोड एंड आखिरी नोड होगा, उसके बीच में अपन को ट्रैवल करना है तो कितनी, मतलब अपन को लिंक्स की जरूरत पड़ेगा, कितने पाथ की जरूरत पड़ेगा. तो मैक्सिमम शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? सो दिस इज कॉल्ड डायमीटर. And one more that is bisection width. One more thing is bisection width, है ना? So bisection width normally मैं layman language में बोल रही हूँ. Bisection width means टू नेटवर्क है, नेटवर्क को आप कोई भी एड्ज मतलब लिंक काटने से वो टू नेटवर्क्स में स्प्लिट होना चाहिए, है ना? तो ऐसा कितने मतलब लिंक्स को आप मतलब इफ यू वांट टू कट, है ना, कट करना चाहते हो, देन इट विल डिवाइडेड इनटू टू नेटवर्क्स. इक्वल नेटवर्क्स नहीं है, टू नेटवर्क्स, है ना? तो मतलब एक साइड एक भी हो सकता है, बाकी साइड पूरा हो सकता है. मतलब नेटवर्क पूरा टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, दैट इज कॉल्ड द bisection width. ये है ना, bisection width provides good indication of maximum communication bandwidth along with the bisection of a network, है ना? So ये पता चलने के लिए मतलब it is a good indication है, इसलिए bisection width को अपन को जानना चाहिए. So क्या क्या है? Number of nodes, number of links, node degree, diameter and bisection width, है ना? Okay, 5 है. Number of nodes, number of links, edges, है ना? node degree, diameter and bisection width. ये सभी का आपको मतलब important है कैलकुलेट करना. So normally static networks हैं, ये सब है, मतलब ऑलरेडी नेटवर्किंग में पढ़ रहे होगा आप लोग. लीनियर अरे रिंग, है ना? मतलब कंप्लीटली कनेक्टेड चौड़ल रिंग, बैरल शिफ्टर, ट्री एंड स्टार, फैट ट्री, मैश एंड टॉरस, मतलब ये आप जानते हैं. सो दीज आर द स्टैटिक नेटवर्क्स, है ना? सो सपोज एक एक कुछ नेटवर्क्स का मैं एग्जांपल बता दूंगी, ये 5 मतलब फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दीज आर द, ये लीनियर अरे है, ये रिंग है. ओके, रिंग इट इज अनडायरेक्शनल, है ना? डायरेक्शन नहीं है. ये ट्री है, दिस इज मैश. ओके, एंड दिस इज
क्यूब है. सो दीज आर सम एग्जांपल्स, मतलब आप ऑलरेडी जानते होगा, देखिएगा. सो दीज आर सम इमेजेस है. अब देखते हैं, सपोज लीनियर अरे है. ओके, लीनियर अरे पे आप नंबर ऑफ नोड्स है ना, नंबर ऑफ नोड्स क्या होगा, सपोज n नोड्स आर दे. सो कितने लिंक्स होगा इसके बीच में, देखिए यहाँ पर कितने नोड्स है, 1 2 3 4 5, कितने लिंक्स है, 4 लिंक्स विल बी अवेलेबल. सो लीनियर अरे पे आपको n-1 लिंक्स विद अवेलेबल. ओके, नोड डिग्री क्या होगा, नोड डिग्री मतलब क्या है, सो यहाँ पर आपको कितने कनेक्शन, मतलब एक एक नोड को कितने एडजस्ट मतलब लिंक्स कनेक्टेड है. सपोज ये है आउटर है, इसका नोड डिग्री 1 है ना. इनर है तो इसका नोड डिग्री 2 लिंक्स आर कनेक्टेड है ना. सो फॉर इनर नोड्स it is a 2 degree and external nodes have the degree 1 है ना. so diameter क्या है, सपोज 2 मतलब 2 नोड्स के बीच में, एनी 2 नोड्स के बीच में मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्टेस्ट पाथ है ना. एनी 2 नोड्स मतलब यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट ले लीजिएगा है ना. सो यहाँ पर कितने पॉसिबल वो चाहिए अपन को, 1 2 3 4, मतलब सभी लिंक्स को मतलब यहाँ क्रॉस करके फिर आप आखिरी नोड तक पहुंच पाएंगे है ना. सो इसीलिए डायमीटर इज इक्वल टू n-1 है ना. n-1 एनी 2 नोड्स नहीं ले सकते, मतलब एनी 2 नोड्स मतलब सभी पॉसिबल नोड्स आना चाहिए. फर्स्ट एंड लास्ट इज द लास्ट पॉसिबल, लीस्ट पॉसिबल है ना. इसके बाद इससे ज्यादा तो होगा नहीं, इसीलिए डायमीटर इज n-1. सो बाइसेक्शन विड्थ क्या होगा, इसको काट दीजिएगा तो क्या होगा, सो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड बाइसेक्शन विड्थ है ना. bisection width, so it is bisection width is equal to 1. bisection width is equal to 1. okay, so number of n-1 links है, and out degree मतलब internal degree is 2, node degree is 2 है ना. इसको कहते हैं diameter is n-1 and bisection is equal to 1 है. okay, and suppose ये ring ले लीजिएगा यहाँ पर. सो रिंग है, रिंग मतलब इट इज लाइक लीनियर अरे 2 एंड नोड्स आर कनेक्टेड बाय nth लिंक है ना. आप रिंग आप जानते हैं. सो द रिंग कैन बी यूनी और बाई डायरेक्शनल है ना. यूनी और बाई डायरेक्शनल, कोई भी मतलब बाई डायरेक्शन हो सकता है, यूनी डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन नहीं है इसका मतलब है ना. सो डायमीटर इज n/2 फॉर ए बाई डायरेक्शनल रिंग और n फॉर ए अनडायरेक्शनल रिंग है ना. सो डायमीटर मीन्स, देखिए दिस इज द रिंग है ना. सो टोटल लिंक्स, टोटल नोड्स कितना होगा, सपोज नोड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 है. तो लिंक्स कितना है, यहाँ पर लिंक्स कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना. सो 8 nodes are there and 8 links are there. okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना. लिंक्स देखिएगा, यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8. okay, so n nodes are there and n links are there. suppose this is a bidirect मतलब undirectional है. so undirectional means आप कोई भी नोड मतलब यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ कनेक्ट. सो इसमें मैक्सिमम मतलब डिस्टेंस किस नोड के बीच में होगा. सपोज ये आखिरी फर्स्ट है, इस नोड के बीच में, तो आप इधर अनडायरेक्शनल यहाँ से भी आ सकते है ना. सो मैक्सिमम डिस्टेंस इस दोनों के बीच में होगा. सो टोटल 8 है तो इसका डायमीटर क्या होगा, n/2 n/2 है ना. बाई डायरेक्शनल नहीं है, अनडायरेक्शनल है. सपोज बाई डायरेक्शनल है तो क्या होगा इसका, हाँ बाई डायरेक्शन मीन्स कहीं से भी जा सकते हैं. अनडायरेक्शन मीन्स मतलब एक ही डायरेक्शन में जाना है, एक ही डायरेक्शन में जाना है. तो सपोज इससे इस इधर मिलना है आपको, तो क्या होगा, सो टोटल पूरा मतलब क्रॉस करना पड़ेगा. सो n अलविदा ये है. सो डायमीटर इज n/2 फॉर बाई डायरेक्शनल है ना. एक डायरेक्शन मतलब ये कोई भी डायरेक्शन में जा सकते, तो उसकी n/2 है. एंड फॉर ए n फॉर द अनडायरेक्शनल रिंग है ना. अनडायरेक्शनल मीन्स मतलब देयर इज नो मतलब डायरेक्शन है ना. अनडायरेक्शन यहाँ पर है तो फिर एक डायरेक्ट यूनी डायरेक्शन, अनडायरेक्शन नहीं यूनी डायरेक्शन है तो सो आपको पूरा क्रॉस करके जाना पड़ेगा. दैट्स व्हाई n है. ओके,
So by adding the additional links है ना circle, the node degree is increased है ना, additional degree. देखिए we have done fully connected network. Suppose देखिए बेटा fully connected network क्या है? Fully connected network means ये ring है, ring को fully connected means यहाँ से पूरा मतलब फिर से मतलब ये दोनों तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ ऐसा हर नोड को कनेक्ट कर दीजिएगा. हर नोड को कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर so with node degree n minus 1 and diameter is equal to 1. diameter क्या है? अब एक एक नोड मतलब रीच करने के लिए एक ही का जरूरत पड़ेगा ना, एक नोड को रीच करने के लिए एक ही का जरूरत पड़े, मतलब एक ही बार जाना मतलब एक ही लिंक जरूरत है, इसलिए diameter is 1 है and node degree is equal to n minus 1 है ना. हर एक लिंक is connected with every मतलब इसके अलावा बाकी दूसरे से connected है, so that's why node degree is n minus 1 and diameter is 1. if it is fully connected ring है तो, if it is fully connected ring है तो देखिएगा static network that is equal to tree है तो k is the level है suppose है ना. so this is the tree, okay, this is the tree, okay, k is the level, first level, second level and third level, okay. so देखिए so number of nodes क्या होगा 2 to the power of k minus 1 है ना, 2 to the power of k minus 1 है. So 2 to the power of k minus 1 means 2 to the power of k that is equal to 3 minus 1 that is equal to 7 है ना. 7 nodes are there. देखिए 7 nodes है यहाँ पर. So 1 2 3 4 5 6 7 if it is a complete binary tree है तो. अब node degree क्या होगा यहाँ पर, इट इज इक्वल टू एक ट्री है, सो यहाँ पर मतलब ये ट्री देखिएगा यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर कनेक्टेड, सो 3 मैक्सिमम इज द 3 है ना, बाकी तो 2 2 है ना मैक्सिमम. एंड बाइसेक्शन विड्थ क्या है, एक को कनेक्ट मतलब आप लिंक को मतलब कट करने से पूरा ट्री दो टू मतलब नेटवर्क 2 स्प्लिट हो जाएगा. दिस इज द बाइसेक्शन विड्थ, ओके. डायमीटर एक से आखिरी तक पहुंचने के लिए है ना क्या है, this diameter is equal to k minus 1 है ना, number of levels minus 1 that is equal to 3 minus 1 2 है. so आपको 2 मतलब आखिरी से मतलब वहां से कोई भी आखिरी मतलब 2 it will be taking, okay. so this is the tree के लिए आपका वो है. and like mesh है ना, प्योर mesh है ना, प्योर mesh means इलियाक में अलग होता है. प्योर मेश के लिए मैं बता दूंगी आप लोगों को. सपोज एक ये मेश है, दिस इज द मेश है ना, सपोज ये मेश है. सो यहाँ पर देखिए बेटा इसको कहते हैं अपन ये, इसको लेवल भी कह सकते हैं, नॉर्मली इसको रैंक कहते हैं, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक, ओके. एंड ये कितने डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है ना, 3 डायमेंशन तो नहीं है ये 2 डायमेंशन है, ओके. ये 2 डायमेंशन मतलब मैश है, 2 डायमेंशन मैश है, लेवल्स है 3 है, मतलब रैंक है 3 रैंक है, थर्ड रैंक 2 डायमेंशनल मैश है. तो इस टाइप ऑफ मैश के लिए आपको कितनी नोड्स हो सकते हैं, देखिए प्योर मैश है तो n is equal to n to the power of k है ना, n to the power of k. n to the power of k means n means क्या है, रैंक है, कितने रैंक है, थर्ड है ना, 3 रैंक है. सो टोटल नोड्स आपका मतलब वहां पर देखिएगा 9 है ना, ओके. टोटल नोड है यहाँ पर, रैंक है 3 है एंड लेवल मतलब ये क्या है यहाँ पर, ये 2 डायमेंशन है. सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 नोड्स है ना, विद द लिंक्स इन ईच एडजेसेंट पे है ना, 9 लिंक्स आर देयर, ओके. मतलब 9 नोड्स विल बी देयर है ना. कितना मतलब आपको 2 डायमेंशनल एंड 3 रैंक वाला है तो टोटल 9 नोड्स विल बी देयर, ओके. एंड इसके बाद इसकी नंबर ऑफ मतलब नोड डिग्री क्या होगा, 2k. नोड डिग्री 2k मींस k मींस व्हाट, यहाँ पर इट इज मतलब डायमेंशन है ना, 2k means it is 2 to the power मतलब 2 to the power of k भी है ना, 2k this is 2 into 2 that is equal to 4 है ना. so node degree is equal to 4. so internal node के लिए, इंटीरियर नोड के लिए देखिए, इंटीरियर नोड है इसका कितना है, 1 2 3 एंड 4 है ना. डायमेंशन ऑलवेज स्क्वायर ओनली, सो इसीलिए इट इज 4 ओनली इंटीरियर नोड के लिए. मतलब आउटर नोड के लिए कितना है, 2 है, ओके.
2 है इसका नोड डिग्री, ओके। एंड डायामीटर क्या होगा, ये फर्स्ट नोड यहाँ तक जाना है तो कितना होगा, यहाँ 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 यहाँ, मतलब 4 है। सो डायामीटर क्या है यहाँ पर, डायामीटर इज इक्वल टू k इंटू n-1 है ना, k इंटू n-1। k मीन्स इट इज अ डायमेंशन, डायमेंशन इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल, मतलब आपका नोट्स कितना है, टोटल नोट्स यहाँ पर कितना है, दैट इज इक्वल टू 9 है ना। हाँ सॉरी, टोटल यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है, इट इज अ रैंक है ना। सो रैंक -1 इट इज इक्वल टू 3 - 1 इट इज इक्वल टू 2 है, 2 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 4 है। सो मैंने देख चुकी थी यहाँ पर आपको डायमीटर, यहाँ से सपोज यहाँ जाना है तो 1 2 3 एंड 4, ओके। सो दीज आर सम, आप लोग बाकी देखिएगा इलियाड मेश क्या होता है, टॉरस क्या होता है, सब ये सब सही है नहीं है। विथ टॉरस मतलब यहाँ पर इमेज लेकर आप एक टॉरस मतलब एवरीथिंग मैश, हर एक नोड मतलब कनेक्ट होता है उस पे है ना, रैप अराउंड होता है उस पे। सो दैट इज द टॉरस, मतलब यहाँ पर। सो उसको देखिएगा, ये स्टैटिक नेटवर्क्स को मतलब कनेक्शंस करने के लिए इट विल बी नोड, मतलब 5 पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एक है नंबर ऑफ नोड्स, लिंक्स एंड नोड डिग्री, डायमीटर एंड बाइसेक्शन विड्थ। एंड यहाँ पर हाँ, ये बाइसेक्शन विड्थ तो अपन मेंशन नहीं किया, देखिए बाइसेक्शन विड्थ एक को करने से होगा क्या, पूरा स्प्लिट 2 चाहिए है ना, 2 स्प्लिट करने से आपको बाइसेक्शन मतलब नेटवर्क इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 हो जाएगा, ओके। सो दीज आर द सम स्टैटिक नेटवर्क्स है ना। सो कोई भी नेटवर्किंग को फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस क्या क्या है, फंक्शनैलिटी, हाउ द नेटवर्क सपोर्ट्स डेटा राउटिंग इंटरप्ट हैंडलिंग सिंक्रोनाइजेशन है ना। सो हाउ इट इज फंक्शनिंग, नेटवर्क लेटेंसी, मतलब वर्स्ट केस टाइम फॉर ए यूनिट मैसेज टू बी ट्रांसफर्ड, बैंडविड्थ है ना, मैक्सिमम डेटा रेट, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वाइड्स लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट, एंड स्केलेबिलिटी है ना। सो स्केलेबिलिटी मीन्स कोई भी एक छोटा सा नेट मॉडल मतलब डेवलप किया, उसको अपन मतलब एनहांस अगर लार्ज बिग साइज करने में भी वो इतना ही काम करेगा या कम हो जाएगा उसका। सो दैट इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स व्हाइल डिजाइनिंग ए नेटवर्क है ना, दीज आर द फैक्टर्स इट विल बी implemented, okay. So dynamic networks are shared bus, multi stage and crossbar, इसको अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे, मतलब क्या क्या है मल्टी स्टेज नेटवर्क, क्रॉसबार क्या है। So these will be discussed in the next class, okay. So today we have discussed how to implement the parallelism in a sequential code. So code को कैसे अपन डिजाइन मतलब कर सकते, डिवाइड कर सकते, फाइन मीडियम एंड कोर्स है ना, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर। फिर स्टैटिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स क्या क्या है, उसका 5 नेटवर्क्स, नंबर ऑफ नोड्स कितना है, नोड लिंक्स क्या है, नोड डिग्री क्या है, डायामीटर क्या है एंड बाइसेक्शन विड्थ क्या है, ये अपन डिस्कस कर चुके थे, ओके। थैंक यू वेरी मच।